Anyone can speak. So let us get ahead with the vocabulary. कुछ हमने लिखवाया था पिछले क्लास में. Those who did not come, they may take down the I'm recapping. I'm going to ask questions and you have to answer. What is the meaning of acid test? नहीं पता. जो हर तरह का टेस्ट पार कर चुका है. Can you please give an example like what is acid test and what do you think in today's world has passed the acid test? हाँ ये तो हम लोग कल डिस्कस किए थे. कोविड वैक्सीन, it has passed the acid test. मतलब ये स्टडी है and everybody and anybody can buy this और this is a good buy. कोई प्रोडक्ट जो एसिड टेस्ट पास किया होता है मतलब कि ये हर किसी के लिए ISI मार्क हो जाता है ना. ISI मार्क जानते होंगे आप लोग ना. वो क्या होता है? What is ISI mark? It always speaks of quality. Similarly, an acid test is that test which has passed the ultimate test. So it has passed the acid test. An acid test proves that this product is effective. ये product effective है. And this is in common language, this is a good buy for your money. इस जिसको खरीद करके आप regret नहीं करेंगे. You will now not regret. Now, in today's world, what is one thing which you have bought and which you think had passed the acid test? iPhone. What about laptops? कौन सा laptop है जो pass कर चुका है? HP. HP has passed the acid test. कहीं से भी कुछ भी करो मतलब. कार में Scorpio. Not that Maruti van. Okay, that has passed the acid test. बहुत सारे कार ऐसे भी होते हैं that अपने आप आग लग जा रही है, कुछ हो रहा है तो क्या? वो स्कूटी है, ओला की स्कूटी. हाँ, तो ये सब it has not passed the. इसलिए इसको खरीदने के पहले लोग सोचेंगे 20 बार खरीदना चाहिए भी कि नहीं. एंड बहुत सारे चाइनीज मोबाइल्स हैं जो कि विद बर्स्ट्स विस्फोट हो जाता है. एंड या सो सच मोबाइल्स व्हिच हैज सम इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, so that has to be for people to reach its consumers, the product has to pass the acid test. ठीक है, मतलब क्या था, मीनिंग क्या था, वर्ड क्या था शांत? एसिड टेस्ट. तुम्हारी नजर में वो क्या चीज है which has passed an acid test? You are doing a lot of work in भागलपुर, social work कुछ कर रहे हो. So has it passed? your work जो है, has it, is it effective? Has it been proved effective? If a product has been proved effective, this has passed the acid test. Like the upcoming communication fest. Yeah. Simage has passed the acid test. I'll give you an example. Tomorrow again there is an entrance test, and we have to be with the students who are appearing, and the most difficult part is taking the interview, and we are supposed to speak only English. Like, there was one student who was so nervous
इतना नर्वस हो गया था वो कि छोटे बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं तो उनका पैंट वैंट खराब हो जाते हैं। हाँ, it happened to that boy that who had given the test. इंटरव्यू में इतना नर्वस हो गया कि उसको जल्दी से हटाना पड़ा। नहीं, आप समझे नहीं। He soiled his pants. हम नहीं समझे। सॉइल का दो मतलब होता है। एक सॉइल वो होता है, क्या होता है सॉइल? बताएगा रिशाद। What is soil? मिट्टी। और एक होता है when a child soils his clothes, it means he wanted to go to the bathroom, but he was so nervous that he did it there only. He soiled. और वो किसके सामने? मेघा मैम। उसके बाद तो there was also one person वो बहुत चिल्ला रहा था, क्या कौन सा तरीका है, सुबह से बुला ली अभी तक नहीं है, this that and the other। उसको तो सीधे बाइज्जत आप चले ही जाइए। and he was the student's elder brother। उसके बाद वो इतने रिक्वेस्ट आए, उसको तो हम लोग एग्जाम्प्ट ही कर दिए थे, मतलब एक्सपेल कर दिए थे। एग्जाम्प्ट नहीं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जाम्प्ट एंड एक्सपेल? देखिए वर्ड आ रहा तो पूछे, एग्जाम्प्ट कर देना मतलब छोड़ देना, और एक्सपेल कर देना, भगा देना। His sister, his brother, इतना रिक्वेस्ट आ रही थी, went on writing applications। एक दिन काउंसलर साइड मैम इसको पढ़ लीजिए ना प्लीज, अलाउ कर दीजिएगा तो उसका एडमिशन हो जाएगा। मैं क्या है भाई, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर माय ब्रदर एंड दिस एंड दैट। खुद लड़की बेचारी लिखी हुई थी कि अगर मैं नहीं पढ़ूंगी सिमेज में, इफ आई विल बी डिनाइड एडमिशन इन सिमेज, आई विल नॉट स्टडी एनीमोर। हम कहीं पढ़ेंगे ही नहीं, पढ़ना है तो सिमेज में ही पढ़ना है। सो आई एम वेरी सॉरी फॉर माय ब्रदर्स बिहेवियर। आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। देखिए ये सिमेज का ये ऐसे टेस्ट पास करने नहीं, ऐसे नॉट ओनली एड, पढ़ाई जो जिस तरह की यहाँ पे होती है ना, तुम लोग परेशान हो, बाप रे बाप, सुबह से जो क्लास हो रहा है शाम तक हो रहा है। और हमने तो बहुत सेंटर्स देखे हुए ना, देखो हर सेंटर में कितने क्लासेस होते हैं, बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहे हैं आपको, नॉट मोर देन 2 क्लास हुआ तो हो गया, ठीक है, 1 हो गया तो बहुत क्लास हो गया। आज कितना क्लास हुआ? 3 क्लास, बहुत हुआ, जाओ चलो हो गया, ऐसे बोलते हैं लोग वहां पे। Exactly. ब्रिज में तुम लोग आए थे, तुम लोग समझे थे अब तो कॉलेज चले हैं, अब तो 1-2 क्लास करेंगे, मस्ती करेंगे, मौज करेंगे, उसके बाद अपना टाटा बाय बाय कॉलेज, हम लोग अपना मस्ती। लेकिन तुम लोग का भी रिक्वेस्ट, मैम कम करा दीजिए इसको, और 1 क्लास बहुत ज्यादा कम, लो एक और मिल गया तुमको। तो वही सब तो है जो तुम लोग आज इतने कॉन्फिडेंटली बोल पाते हो, वो सब इन्हीं के ब्रिज में खत्म हो गया तो दैट इज ओवर। दैट ऑलवेज समथिंग ऑलवेज कंटिन्यूज विच इज क्वालिटी, उसको आप हटा ही नहीं सकते। आप लाख चिल्लाइए, मैनेजमेंट के अगेंस्ट बोलिए कि हमको इतना क्लास मिल रहा है, दिस दैट, एट द एंड ऑफ द डे आपको भी पता है कि यही सब काम आने वाला। अब देखो ना BCA के आप लोग तो नहीं थे सेशन में, जबकि हमको लगा था कि BCA के 6 सेम को इंक्लूड करना चाहिए था, लेकिन इसलिए मेरा क्लास आप में लगा नहीं था तो डिस्कस नहीं हो पाया। और जितने लोग थे कोऑर्डिनेटर्स थे आपके, उन लोगों ने कोई फीडबैक दिया नहीं, because I had told all the coordinators to please give me the students the list of people who want to participate। लेकिन आपके बिना आपकी क्लास नहीं किया था। Otherwise, let me tell you, there were 44 students from each batch from Simaj College। अभी पिछले फेसबुक पे तुम देखे होगे तुम लोग, इसमें एक्सप्रेशन जो स्पीच कंपटीशन होता है, आपके कोऑर्डिनेटर्स नहीं बोलते हैं तो दिस इज अनदर थिंग। बट आई हैड रिक्वेस्टेड ऑन Vibrant official group that all the coordinators please give me the participants result। तो आपके क्लास से कोई coordinator ने कुछ भी नहीं दिया। There were 44 students who participated in expressions। और जीतने वाले कौन? The first semester BBA के third sem माही got the first prize।
ब्रिज क्लास की एक 2000, हाँ 2000 सेकेंड आई ब्रिज क्लास की लड़की जो कि दो महीने से तो क्लास, 1 महीने से तो क्लास ही करी, सुनिधि रंजन। एंड थर्ड केम BCAKU फर्स्ट सेम खुशी रंजन। जबकि उन लोग कॉलेज में नहीं आ रहा है, दे आर ऑन एग्जाम लीव। अब वो लोग हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। मैम हम लोग को तो आप कुछ बताया ही नहीं है कि मेरा तुम लोग को तुम घर पे होगा। No, we want to participate. This is the motivation of Civic. There are more than 300 students in that batch. Simply सिर्फ बैच 2 में 300 बच्चा है, बैच 1 में करीब हो गए 200 लड़के। उनके लिए तो ऊपर में हॉल खाली था, खाली कराया गया था। वो जब लगता था कोई इवेंट हो रहा है, साथ में जाते थे तो लगता था कि some event is going to happen. And they were so motivated that they wanted to participate. And 9 students came घर से आकर के नहीं मुझे पार्टिसिपेट करना है, they participated. So that is the spirit. The topic was completely management. The topic was completely for management. मैंने ये देखा कि हमेशा IT बहुत होता है, IT बहुत अच्छा है, मैनेजमेंट थोड़ा सा बैक सीट ले रहा है। So जितने भी क्लासेस में हम जा रहे थे मैनेजमेंट क्लासेस में, I thought next time I'm going to take management to the top, which I did. हर बार IT I thought नहीं, I have to do something for management. तो BBA के थर्ड इस बार सारे मैनेजमेंट के बच्चे ही ले गए। हाँ टॉपिक था इट वाज सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ड्यू टू COVID-19। उसमें आप नंबर बहुत अच्छा बोलता, उस दिन बहुत अच्छा बोला, आप भी अच्छा बोल रहे थे आप लोग। और श्वेता सिंघानिया, आई वाज थिंकिंग ऑफ यू, लेकिन समहाउ ये क्लास ही मिस हो गया आपसे। Otherwise, I would have definitely asked you to participate. The socio-economic problems because of COVID-19, number 1. Number 2, Russia-Ukraine war. इन दोनों की वजह से जो सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो रहा है उस पर डिस्कस करना, और वेरी इजी। सर ने कहा था बिल्कुल 2 मिनट पे खत्म कर दीजिएगा, तो 2 मिनट से बोल रहा है, तो तुम लोग तो खैर शुरू किए तो इट वाज एन आवर ऑफ डिस्कशन। कंक्लूड ही नहीं कोई कर रहा है, इट वाज वी वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो 1 घंटे का डिस्कशन हुआ था। हाँ, now what I have seen is that you all are quite good at communication. आप लोग बोलते हैं, आपके पास कंटेंट भी है, आपके पास डिलीवरी भी है। This is the quality of speech. Something which has passed the asset test. इतनी rigorous classes जो हुआ करते आपके, workshop this that. So anyhow, so yes, with the style, the methodology of Simej surely has passed the asset test. आपको बताने वाले थे एक केस हिस्ट्री। एक बच्चा आया तो हम लोग फीडबैक लिख लेते थे, आप सो व्हाई डू यू वांट टू स्टडी एट सिमेज। तो बहुत लोग बहुत तरह की बात करते हैं, यहाँ की पढ़ाई अच्छी है, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, यहाँ प्लेसमेंट बहुत जल्दी मिल जाता है, प्लेसमेंट मिल जाता है, यहाँ पर मिल ही जाता है। एक बच्चा क्या बोला, हमको ना, वो हिंदी में बोल रहा था, हमको ना मेरे फादर बोले कि नहीं तुमको सिमेज में ही पढ़ना पड़ेगा। हम उसको देख रहे थे तो बोले हाँ, मैम पूछेगा नहीं कहा है। हमने हाँ क्यों, इसीलिए कि वहां सुनने में आया है और सही बात भी है कि नहीं पढ़ने वाला बच्चा भी यहाँ पढ़ने लग जाता है, कि जो एकदम से खत्म है उसको भी आप लोग पढ़ा करके नौकरी दिलवाइए देते हैं। आप तुमको कौन सा कोर्स करना है, तो हम मतलब BCA ही करना है, कि BBA नहीं करना है, तो नहीं BCA ही करेंगे हम। BCA में तो नहीं, BCA ही में इंटरेस्ट है, ठीक है, BCAT नहीं, ना BCA ही करना है। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम BCA, लेकिन PGDM के भी बहुत बच्चे आए और BBA BBM के लिए बच्चे आए, तो अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस वी गिव देम AKU और PBA। और कल फिर 3rd बैच शुरू हो रहा है ब्रिज का, वी आर होपफुल दैट थिंग्स आर गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन। और दूसरी बात जो ये क्लिक की है, जो एसिड टेस्ट पास किया है, वो है आपका ऑनलाइन जो क्लासेस जो लाइव स्ट्रीम जो हो रहा है ना,
This has really passed the acid test. How? People are watching that and taking admission. कि लोगों में ये एक मिथ था कि ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई नहीं होती ठीक से, या बच्चा को समझ में नहीं आता है, या टीचर नहीं पढ़ा पाते हैं, समझा नहीं पाते। ये मिथ ब्रेक हुआ है। स्टूडेंट्स हैव सीन द लाइव क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस भी देखा लोगों ने, और कि हाँ हम लोग अच्छी तरह समझ में आती है बात। तो जहां तक बात पासिंग द एसिड टेस्ट, तो दिस वाज अ वेरी गुड मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑफ डायरेक्टर सर, व्हिच प्रूव्ड टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, जो बच्चे और भी कहीं पढ़ रहे हैं, दे आर वाचिंग, बिकॉज यूट्यूब इज फॉर एवरीबॉडी, यू कैन नॉट डिनाई एनीबॉडी फॉर यूट्यूब चैनल। तो कुछ एसिड टेस्ट पास कर जाता है, इट प्रूव्स द effectiveness of anything, any product or any project or any course or anything. An example sentence दिया हुआ था, I practiced hard at the dance sessions, but the acid test will come only when the master will assess my solo performance. Practice तो बहुत किया है, लेकिन acid test हम पास नहीं किए अभी। अपनी नजर में मैं बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है, लेकिन एसिड टेस्ट अब कब होगा मेरा? जब मेरे टीचर बोलेंगे कि हाँ इस टाइम पर। So the second expression was to cut the ground from under the feet. नहीं, जो लोग नहीं आते, शांत वगैरह नहीं आते। To cut the ground of under the feet. Can you explain? To put somebody in a tight spot. किसी के लिए मुश्किल खड़ा कर देना, किसी के नीचे से जमीन खींच लेना, हिंदी में बोलते हैं ना, जमीन खींच। It is a proverb. As the English expression, to cut the ground from under the feet. Meaning, when you cut the ground from under the feet, someone's feet, you do something which weakens their position. Example sentence. When Team India hit more than 350 runs in the ODI, they cut the ground from under the opponent's feet. To put your opponents in a weak position, in a tight spot. Somebody please explain to chase your tail. Somebody explain. Chase your tail. What does it mean? Chase, C-H-A-C-S-E. Chase, किसी को chase करना. The police chase the thief. Yeah. पूरी effort लगा देना. To chase your tail. अब अपना tail तो आप ही के पास है ना. अब it does not mean that human beings have tail. तो पूरी एनर्जी लगा देना, पूरा एफर्ट लगा देना, पूरा टाइम भी लगा देना, और अचीव कुछ खास नहीं करना. Spending a lot of money and energy doing a lot of things. पैसे भी खर्च कर रहे हैं. जैसे कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ के आता है, फिर वो कोचिंग पढ़ने जाता है, कोचिंग से पढ़ के आता है, फिर उसको ट्यूशन पढ़ाने कोई आ जाता है. So spending a lot of time and a lot of money. और अचीवमेंट क्या हुआ? बच्चा इतना थक जाता है कि क्या पढ़ेगा, सो भी नहीं जाता है, एग्जाम में पास ही नहीं करता है. So achieving nothing. So what are the parents doing? They are chasing their tail. So spending a lot of time and money doing a lot of things, but actually achieving too little. He has been chasing his tail all week, collecting data,
but the report is still not ready. Whole bag of tricks. Cover it. कौन सा ऐप
हाँ बीच कोर्स चल रहा है। जो बच्चे पास आउट करते हैं ना, सिर्फ BCA के बच्चे या BBA के बच्चे, तो पूछा जाता है उन लोगों को, जिनको जिनको जॉब मिल जाता है, ये सर आस्क देम आपका जर्नी कैसा रहा। Everybody will talk about bridge class. So what do you think about? हाँ खांसी बहुत ज्यादा है, मतलब एलर्जी से। नो छुट्टी क्या, बाद फिर क्लास नहीं है क्या? BBA थर्ड में। And with Adnan sir is not coming. हाँ फिर क्लास स्टार्ट करिए ना, 12 से BCA में लगा दिए लोगों ने, वो चेंज करना है आपका ये क्लास। I want to talk about communication first also. Let me complete this with to chase your tail, to do a lot of work, but hard work, not smart work. Achieving very little. Chasing your tail but not achieving what you want. Whole bag of tricks. Explain. Let's flip the example. Explain. बच्चे नहीं समझ पाए तुम्हारा एक्सप्लेनेशन। होल बैग ऑफ ट्रिक्स समझाइए ना। समझ गया ना, मतलब सारी तुम समझ गया ना, निशान नहीं समझा। इंटरव्यू के लिए मैम अपना पूरा ट्रिक्स लगा के क्रैक कर लिया, मतलब अपनी हर भरसक कोशिश हमने कर लेना है। I will use all my bag of tricks. पूरा तरीका जितने भी स्किल्स मुझे पता है वो सब अपने बैग ऑफ अपने हम किसी खास चीज में लगा देंगे। नहीं meaning trying all the clever means to achieve something. यहाँ पर ट्रिक्स के बदले स्किल्स लगा दो, अगर whole bag of tricks, skills. जाइए मैम, रेस्ट कीजिए मैम। कर लीजिए मैम, फिर आप दूसरा क्लास में All right, the sample sentence is, it was really difficult to find the information. No, it was really difficult to find the information even after applying the whole bag of tricks. सारी ट्रिक्स, सारी स्किल्स लगाने के बावजूद भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाया। The fifth was to deliver the goods. ईशान से पूछते हैं इसका मतलब क्या समझता हूँ। यस, तुम्हें तो नहीं आई थी ना, क्या मतलब होता है डिलीवर द गुड्स का मतलब?
कहीं जाकर के डिलीवर कर देना गुड नहीं ना क्या होता है तो देवराज डिड यू डिलीवर द गुड्स yesterday did you सामने वाला मैम जो चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग to do as expected तुमसे जो उम्मीद की जा रही है उस पे खरे उतरना to deliver the goods to do what is expected or promised तुमने जैसा प्रॉमिस किया था तुमने जैसा कहा था वैसा करना I have given my car to a new mechanic for repair. Hope he delivers the goods. It means hope he does what is expected. Somebody please explain fine tooth comb. Fine tooth comb. F-I-N-E fine. वो fine नहीं जो तुम देते हो. Fine tooth. T-O-O-T-H. Fine tooth क्या होता है निशांत बताओ नहीं पता फाइन टूथ का मतलब क्या होता है फाइन टूथ कोम का मतलब क्या होता है उसका यूजेस क्या है जैसे देवराज बताया था क्या यूजेस है वो मोटे कंघी से नहीं होगा ना वो ढूंढ नहीं पाएगा पूरा सबसे महीन वाली पतली वाली कंघी होती है किसी को डैंड्रफ होता है या किसी को कुछ एनिमल्स इन द हेयर लाइस तो मोटे वाली कंघी से करोगे तो नहीं निकलेगा ब्रश से करोगे तो नहीं निकलेगा वो केयरफुली एग्जामिन नहीं करता लेकिन फाइन टूथ कॉम्ब क्या होता है वो एक एक को निकाल के बाहर कर लेता है टू एग्जामिन वेरी केयरफुली yes the HR he must have examined you with a fine tooth comb examine carefully to not to miss out any details. The boss examined my report with a fine tooth comb. The HR examined your presentation with a fine tooth comb. To explore all avenues. To explore all avenues. AVENUES. हर जगह एक्सप्लोर करना हर जगह सर्च करना टू एक्सप्लोर एवरीवेयर trying out every possibility to get a result. It is difficult. It is a difficult thing to do, but we really have to. But if we really want it done, we must explore all avenues. Fast track something तो easy है. किसी भी चीज को to rate something on a higher priority. जैसे कि आपने you fast tracked your interview, उसको आपने prioritize कर दिया था कि सबसे ज्यादा उसको अभी important क्या है. Number 9 was to get ducks in a row. DUCK ducks. आप डक्स को देखते हैं या बर्ड्स को देखते हैं, दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड. चींटी को देखते हैं, पता नहीं हम लोग सीखते क्यों नहीं है. बचपन से आप क्यों नहीं है. बर्ड भी जाएगी तो वी करके जाती है, वो एक अगर नीचे गिर के दूसरा उसका प्लेस ले लेता है, बट द वी कंटिन्यूज. अगर आप बर्ड्स रखते हैं तो दे विल ऑल सिट इन अ रो. डक्स भी जाएंगे
तो डक्स क्या करते हैं, लाइन में रहते सब एक लाइन में रहते हैं, कोई आगे बढ़ा भी तो उसके सारे पीछे 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 चलते रहते हैं। मदर डक जाती है तो उसके पीछे पीछे उसके बच्चे भी, ये नहीं क्या इधर उधर नहीं, एक के पीछे दूसरा ऐसे डक्स इन अ रो। इसका मतलब क्या होता है, दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड। उनको कौन मैनेजमेंट सिखाता है, उनको कौन डिसिप्लिन सिखाता है, कोई नहीं। सबसे जो बदतमीज एनिमल होता है वो डॉग्स होता है, कहीं कूद के बैठ जाएगा, पेट डॉग भी। कम हियर, उधर मुंह देख रहा है, बुलाओगे तो उधर मुंह देख रहा है, वही बैठी है, इधर आओ। हैं उसी को पालते हैं वही। हाँ, बट दे आर सो क्यूट। कोई डिसिप्लिन नहीं, वो आके आपके बेड पे, आपके गोद में, आप भी कुछ खा रहे हैं तो आपके हाथ से लेके भी चले जाएंगे वो लोग, कोई डिसिप्लिन नहीं। हाँ नो, फिर डर जाते हैं। To get ducks in a row, to get your things organized, अपनी चीजों को व्यवस्थित करना, to get things in a row, to get ducks in a row. To ensure a successful product launch, we must get our ducks in a row. Get the show on the road. सब मैनेजमेंट से रिलेटेड वर्ड्स हैं, ठीक है। To get the show on the road, ये मैनेजर कब बोलता है, कोई HR कब बोलता है, कोई डायरेक्टर कब बोलता है। So get the show on the road. जैसे कम्युनिकेशन फेस्ट का 1 मंथ शुरू हो चुका है, और हम ये कह सकते हैं, स्टूडेंट्स को भी कह सकते हैं, तो गेट द शो ऑन द रोड, मतलब जो भी प्लान किया गया है उसको बिल्कुल इम्प्लीमेंट करने का टाइम अब आ गया है। So to get the show on the road means put up a plan or idea into action. इंट्रा बैच तो आपके क्लास में होगा, इंटर बैच शायद ऊपर होगा, इंटर ब्रांच भी शायद ऊपर ही होगा हॉल में, बट द मेन इवेंट अगर आप फाइनलिस्ट में पहुंचते हैं तो you have to perform in any hall. Can be Gyan Bhavan, can be Adivation Bhavan, can be SK Memorial. The date will be 25th of June. So intra batch will start from Monday. अब देखते हैं कौन कौन सा बैचेस किसको मिल रहे हैं। सर ने पहले कहा था कि you take all the AKU and Podar sir will take all the PPU. Then we reversed. Podar sir will take AKU, I will take the PPU. Nothing is organized as well, but we will have to get things done today. And I think people who are taking English classes in their batches, they can go ahead with their batches. जो क्लास नहीं ले रहे हैं उनको असाइन कर दीजिए, जो ले रहे हैं उनको कंटिन्यू विद द बैचेस। I just told you, no, everybody has to participate in at least 3 events. So there are 24 events altogether. जिसमें ऐसे राइटिंग भी है, स्टोरी राइटिंग भी है, वोकैबुलरी क्विज भी है, और बहुत कुछ तो आप कर चुके हैं ब्रिज क्लास में। थीमेटिक अप्रिसिएशन, लाइव कमेंट्री, रिमेंबर सब आपने किया हुआ है। डम शराट्स, बहुत सारी चीजें जो ब्रिज में आपको इंट्रोड्यूस किया हुआ है। बैट्समैन का ब्रिज तो गजब चला था।
उसमें डिबेट सबसे जो अहम है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट इज विद पार्लियामेंट. तो ये 10 वर्ड्स के अलावा चलिए आज न्यू वर्ड लिख लीजिए. कीप योर फिंगर्स ऑन द पल्स. टू कीप योर फिंगर्स ऑन द पल्स. टू कीप योर फिंगर्स ऑन द पल्स. ये पल्स है ना, ये पल्स मतलब क्या होता है? एनीबडी कैन गेस. चेक करो बिहेवियर ऑफ तुम डॉक्टर पर मत चले जाओ. डॉक्टर नब्स देखते हैं, वो चेक करे. वो नहीं होता है यहाँ पे. व्हाट? नो. सोचो ना, कुछ तो बोलो. कुछ सही, कहीं सही होगा, गलत होगा. दिमाग को थोड़ा सा अपने काम पे ध्यान दो. Girls, please participate. You can be right, you can be wrong. I don't care. But then you have to speak. मतलब क्या हो सकता है? क्या क्या निकल के आ सकता है? तो कीप योर फिंगर्स ऑन द पल्स. आप इन्फर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज. डॉक्टर पल्स ने अपने आप को तो काम डाउन. बोलिए, कुछ बोलिए, लेकिन बोलिए जरूर. यहाँ सही गलत के लिए पूछा नहीं जा रहा, बस बोला जा रहा है कि आप बात कीजिए, कुछ बोलिए. अपने अंदर देखना. अच्छे काम करते हैं. नहीं तो उस तरीके से इसमें Yes, to be aware. To keep your fingers on the pulse means being constantly aware of the most recent developments. तुम अपने आप में भर, अपने आप को देखना. अच्छा, तो क्या जो गतिविधियों पर बिल्कुल नजर रखना कि अभी लेटेस्ट न्यूज क्या. जैसे जर्नलिस्ट क्या करते हैं, जो मीडिया क्या करते हैं, सबसे पहले ग्रैब करते हैं न्यूज अपना. अब बोलते हैं कि सबसे पहले ये न्यूज आज तक पे हुआ है. ऐसा कुछ होता नहीं. So to keep your finger on the pulse means to be constantly aware of the most recent developments. अब क्या आप अवेयर है कि रिसेंट डेवलपमेंट सिविल में क्या है, क्या हुआ है, आज क्या हुआ था? कवाली था. पता नहीं क्या था. आप लोग थे कि नहीं ऊपर? जगह नहीं था, फिर वापस लौट के आए. सीढ़ी पे बैठने मिला के फिर नीचे से पूरे जाओ. जगह नाट भी नहीं पता. सीढ़ी पे 2-4 बैठ. अच्छा, तो ये हम बता देते हैं. You are not aware, so I am asking you to keep the fingers on your pulse. Sorry, to keep your fingers on the pulse. आज जो प्रोग्राम हुआ था, that was Speak Make program. It was Santur recital by Tarun Bhattacharya. संतूर प्लेयर. नेक्स्ट पीरियड क्या है? क्यों? So to keep the fingers on your pulse, 1 minute. आप ही के लिए, an entrepreneur must keep his fingers on the pulse of the market to be successful. An entrepreneur must keep his fingers on the pulse of the market to be successful. अगर कोई मैनेजर बोलता है I mean business, का मतलब क्या होता है? To mean business. I mean business. What does it mean?
हाँ बताइए ना, to mean business. I would like to give you all the vocabulary for updating your vocabulary for management. So you are a manager and you say I mean business. So अगर आप कोई मीटिंग में आने के बाद पहली बात आप यही बोलते हैं कि I mean business. It mean, what does it mean? Serious and determined about what you are. Yeah, being serious about what you are going to announce. Being serious about what you are. Sorry. Being serious about what you announce. What is your class? इसके बाद no class. No. So this is the last class. And ma'am's class? आपकी क्लास में